So good morning, students. Today in unit Good 2, morning, sir. good morning, dear. Unit 2 management. We are about to finish our unit 2. Uh, these are the last topics which carries of HR part. So MIS, attitudes, personality trait, and its overlap. Uh, these are the topics which I have taken today. And in the next lecture, we'll see exactly the overlap, or rather, here we are studying the overlap, but in the next class, we will study the difference and how leader and a manager is different. What are the roles of manager? What are the roles of leader? And how their roles are different. Okay, so let us go to the first point of today's lecture, that is MIS. How many of you know what is MIS? Full form क्या है MIS का? हाँ जी, Management Information System. So this is Management Information System. Whenever we work in a company or any organization, we have many informations available with us. Okay, many forms of information, rather you can say, that we have to use at a certain level or wherever it is required. Information in terms of people we have, information in terms of business processes we have, in terms of technology we have, in terms of technology processes we have, in terms of uh, many areas we have big bunch of informations available, but we cannot spare time to gather the information manually from one department to another department. And for doing so, we need one platform on our system, or rather software on our system, where we can see the informations available. Like if I need to order a particular component. So first I'll need to check up in my information system that whether that part is available or not. If it is not available, then I have to order it. But if even there are few pieces available, then I have to again book an order for the future scope, because that component is regularly required. That depends upon the requirement of the component. So how I'll get this kind of information? By without leaving my chair, without leaving my place. How can I get it? I must have some kind of a information system which can be accessed before taken any decision. So as per the definition, it is the use of information technology, people, business processes to record, store, and process data to produce information that decision makers can use to make डे बाय डे डिसीजंस. छोटी छोटी चीजों के लिए हमको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. और इस इंफॉर्मेशन के होने का मतलब होता है मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. इफ दैट इज शोइंग अवेलेबिलिटी, देन मैं डिसीजन ले सकता हूँ. तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना. इस तरह से हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, where any departments, all the departments heads और डिप्टी हेड्स कैन लुक इनटू कि उस डिपार्टमेंट की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है. ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हेड्स और डिप्टी हेड्स देख सकते हैं, so that they can guide their department members. Okay, so now another thing is, like, this MIS is the acronym for Management Information System, as I told you in the full form. But in short, I could say that it is the collection of system, hardware, procedures, people that all has to work together to process, store, produce information that will be useful for any part of the organization. Because
the full information of the organization, including various departments and sub-departments, is available on the same platform. But access will be restricted because otherwise there can be demerit of this system, because if the information is leaked out, then there can be many uh, misleading issues. Okay, then we'll see what is the need of MIS, what we why we need this MIS. So we need MIS. We need MIS for many of the reasons or kind of justifications. First one is, as I discussed with you, it helps the decision makers, to check the information and make the effective decisions. Because without effectiveness of any decision, it may you know kill your time, energy, and resources many of the times. So this is helpful in that way. Then comes the MIS system facilitates this communication within and outside the organization as well. How now the employees within the organization are easily organizations are able to do easy access to the required information from for day-to-day operations. Now facilities such as SMS, uh, email make it possible sometimes to communicate with the customers, suppliers, and within this MIS system, because MIS system will have this MIS system will have limited access to the permanent suppliers or vendors, along with the customers कस्टमर्स किस प्रकार के, नॉट ऑफ रिप्लेसमेंट मार्केट, कस्टमर किस प्रकार का, ऑफ ओईएम मार्केट. तो ओईएम मार्केट को एक सेगमेंट हमने दे दिया है कि उनकी कोई भी जो चीज होगी वो वहां हम रेडी होगी तो हम अपलोड कर देंगे, तो उनको क्लियर हो जाता है प्लान करना, है ना. जैसे एक मारुति कार की कंपनी है, मान लीजिए हमारे टायर्स मारुति कार में जा रहे हैं, या हम अशाई ग्लास वाले हैं या मिंडा लॉक वाले हैं, तो हमारा कितना कंसाइनमेंट रेडी हुआ उनके लिए, तो वो MIS का एक पोर्शन उसको उनको एक्सेस हम दे देते हैं कि हमारे आपने जो कहे थे, तो हमारे 1000 लॉक बन चुके हैं, 1000 लॉक आपको कल तक मिल जाएंगे, जो टारगेट है हमारा, उस हिसाब से वो अपने व्हीकल्स को प्लान करेंगे. तो उस तरह से उन लोगों को हमारी जरूरत होती है ना. क्योंकि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में हम देखें तो लॉक्स अलग सप्लायर देता है, ग्लासेस अलग सप्लायर देता है, टायर्स अलग सप्लायर देता है, हैंडल्स अलग सप्लायर देता है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेप और जो उसमें जो म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह लगते हैं, या कुछ ऐसी बल्ब्स लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं. सो they are very much dependent on their suppliers also. So a particular segment of MIS has been shared with their permanent customers, especially of replacement market. And so with suppliers also, where we used to purchase on the regular basis about the raw material, some finished components, many of the things are there. Okay, then comes the record keeping. Yes, it is definitely meant for record keeping. Management information system, it records everything, what we have spent, what we have now, and what we have to order. All these information will be will be kept in this information system, and you can dig out any information available over that system. ये लास्ट 6 महीने में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिजनेस के, कितना कितना माल हमने खरीदा है, सो एज टू कैलकुलेट दी क्वार्टर प्रॉफिट बैलेंस शीट अगर मुझे बनानी हो, या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो, या मुझे कॉस्ट एनालिसिस करना हो, तो दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आल्सो हेल्प्स यू टू डू द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो जो बैलेंस शीट बनती है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं, जो और ये आप पढ़ोगे आगे फाइनेंस में, एक यूनिट 3 में एक टॉपिक है फाइनेंस, उसमें आप ये सब पढ़ोगे. बिजनेस जो जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू द बिजनेस पॉइंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे 1 साल पहले के, 6 महीने के, क्वार्टर के.
So whenever you used to release the information to the customers, to the suppliers, this information, yes, you have to share with your customers also, your suppliers also. If you are a limited company, then you have to share it with your individual customer also, जिसके पास एक भी शेयर आपकी कंपनी का है, कि उसको आपकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट होनी चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ दीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्वार्टरली ऑन द एनुअल बेसिस यू हैव टू शेयर विद योर कस्टमर. बाहर के कस्टमर, अगर आप पब्लिक लिस्टेड हो, अगर आप लिमिटेड कंपनी हो और लिस्टेड हो, देन यू नीड टू शेयर, है ना. और अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से आपको शेयर करना होता है. तो मेनी ऑफ द टाइम्स जो मेजर कस्टमर्स हैं या मेजर सप्लायर्स हैं, वो स्टेक होल्डर कैटेगरी में आते हैं. जैसे हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो एकेडमिक्स में स्टूडेंट के पेरेंट्स, एल्यूमिनी, इंडस्ट्री वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेक होल्डर कहलाते हैं. और कई जगह जब हमको कोई फीडबैक लेना होता है तो इन सबों का फीडबैक होना हमारे पास जरूरी है, बिकॉज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे कम्स अंडर स्टेक होल्डर्स, है ना. और इनकी रजामंदी से आगे बढ़ना, उनकी बात सुनना, ये एमबीए के डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने सीखा है. तो ये चीजें उसमें आती हैं. देन कम्स दी कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस. अब कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस क्या है वो हम थोड़ा सा देख लें, है ना. कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस में हम देखते हैं तो मेजर कंपोनेंट जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें है पीपल, डेटा, बिजनेस प्रोसीजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. तो पीपल में क्या, पीपल हु एक्चुअली यूजेस द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये उनकी बात हो रही है. डेटा, वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड करेगा उसकी बात हो रही है. बिजनेस प्रोसीजर, वो दैट जो हुआ है और जिसका रिकॉर्ड है, जिसको हमने स्टोर किया है और उसको एनालाइज किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है दैट कम्स अंडर दिस थिंग. एंड हार्डवेयर जो है दैट इंक्लूड्स सर्वर्स, वर्क स्टेशन, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, प्रिंटर, whosoever is associated to MIS. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. और सॉफ्टवेयर्स, वो सॉफ्टवेयर MIS का जिसपे हम हमारी पूरी कंपनी देख रही है. ERP भी हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर साथ, इंटरनेट हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं. और वो ताकि हम उस डेटा को कभी स्प्रेडशीट में ले पाएं, कभी वर्ड फाइल में ले पाएं, कभी दूसरे डेटाबेसेस में कंटेन कर पाएं. तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स में उनको प्रोड्यूस करके दे जैसा हम चाहें. इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेनिफिट वही है, अगर ये मेरे पास डाटा रखा हुआ है, अगर मुझे इसको एक्सेल में चाहिए तो मुझे एक्सेल में प्रिंट दे दे. अगर मुझे इसको मुझे ये एक्सेल प्लस उसके ग्राफिकल फॉर्म में चाहिए तो मेरे पास उसमें ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट मैं उस रिपोर्ट को जनरेट करके और वहीं के वहीं उसका एनालिसिस करके प्रिंट ले लूँ, या वो कॉपी किसी को फॉरवर्ड कर दूँ, सो दैट मीटिंग में ले जाऊँ, सो दैट मेरे को डिसीजन लेने में आसानी हो. अदरवाइज होगा क्या, एक एक चीज में पहले कागज पे फीड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सेल में फीड करूंगा, फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसका एनालिसिस करूंगा और फिर उसको मीटिंग में लेके जाऊंगा. तो ये इफेक्टिवनेस जो है बहुत कम हो जाती है सिस्टम से. तो ये चीजें देखने की हैं, ये चीज में हम काफी बचत होती है हमारे. ठीक है. देन बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अवेलेबल है, स्लाइड में आपको नीचे में दिया है. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये 3 तरह के सिस्टम आपके बोले गए हैं. टीपीएस, एमआईएस और डीएसएस. एक्चुअली द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर user is dependent on the level of the organization. So these kind of 3 user interfaces are available inside the organization, which are normally termed in the category of information system. Now this is a transaction processing system. So this normally we used to have with the where you pay through UPI or through क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये इस तरह के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली यूज्ड टू रिकॉर्ड द डे बाय डे ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, है ना. एंड इट्स लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम एक वो पॉइंट है जहां सेल्स या पीओएस सिस्टम अप्लाई होते हैं, व्हिच रिकॉर्ड्स द डेली सेल्स, है ना. तो ये भी जो मनी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें भी डेली सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है ना.
डेली सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और सेल्स की सारी डिटेल होती है, कितने का था, क्या खरीदा, किस भाव से दिया, टोटल अमाउंट क्या हुआ, किस तारीख को कितने बजे, उस दिन मंडे था कि ट्यूसडे था, वो सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन उस इस तरह के ट्रांजेक्शन टीपीएस में कवर हो जाती है ना। देन कम्स द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। उसके लिए अपन ने पहले ही बात कर ली है। ये MIS जो है वो यूज होता है टेक्टिक इंफॉर्मेशन, टेक्टिकली मैनेजर्स को गाइड करने के लिए, ताकि वो क्लोज टू रियल डिसीजंस ले पाए। मैंने डिसीजन जिसको बोलते हैं ना सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस ताकि ले पाए। बाकी जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है वो तो मीटिंग में मिलता है, क्योंकि बाकियों के भी इनपुट आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या उस फॉर्मेट में होता है जहां फाइनल डिसीजन पे आना आसान होता है, तो उस तरह की चीजों, इस तरह की सिचुएशन ये हमको देता है। और जो इसके और कई बार क्या होता है, जो ये टीपीएस है वो एज एन इनपुट काम करता है MIS के लिए, है ना। क्योंकि MIS में हमको ये भी चाहिए, MIS में हमको ये भी चाहिए कि सेल्स कितनी हुई। MIS तो बहुत बड़ा है, MIS तो हर सेगमेंट को कवर करता है, हर डिपार्टमेंट को कवर करता है। लेकिन जो टीपीएस है वो सिर्फ सेल्स वाली चीज़ों को ज़्यादा कवर करता है, और जो उसके फीडबैक है, उससे जो ऑटोमेटेड मैसेजेस जनरेट होंगे, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, ये सारी चीज़ें टीपीएस करता है। लेकिन टीपीएस MIS का ही एक पार्ट है, और इसको इनपुट MIS को इनपुट देने में हेल्प करता है। देन है DSS, which is decision support systems. Now होता क्या है, some MIS systems are, some this kind of information system are highly upgraded. How it is they are upgraded? Because we know, जो वो कहते हैं ना अपन, ये करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, वो करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, ये करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, ये करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, ये नहीं करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स इसमें फीड कर दिए जाते हैं। और चूंकि MIS से ये कनेक्टेड है, तो जो फिगर्स की जानकारी है वो पूरी यहाँ से मिल जाती है, और फिर एक प्रोग्राम फीड उसमें कर दिया जाता है। That depends upon the logics on which personals are, executives and managers are working on. तो वो और थोड़ा सेमी स्ट्रक्चर्ड से थोड़ा हाई एंड पे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, और डिसीजन के लिए सजेस्ट करता है, डिसीजंस के लिए सजेस्ट करता है कि दिस कुड बी द सजेशन फ्रॉम माय साइड, दिस कुड बी द। तो इस तरह के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर लेना ना लेना वो डिसीजन, या उसमें कोई चेंज करना, वो फाइनली डिसीजन मेकर के हाथ में है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि डिसीजन हेल्प करने, डिसीजन को लेने में गाइड करता है, और ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि ये भी आप कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। Now one has to able to read that decisions, डिसीजन के जो ऑप्शंस है उनको रीड करना उसको आना चाहिए, और उसके फेवर में क्या है वो समझ में आना चाहिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, which gives you the attitudes and personality traits. अब ये है क्या? एटीट्यूड हमने देखा है, हर बंदे का एटीट्यूड अलग रहता है, और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स सभी के होते हैं। वो क्या है और क्यों होते हैं, कौन बंदा किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमको उसकी पर्सनालिटी और उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से होती है, एटीट्यूड के हिसाब से होती है। इसी में कोई बात बहुत कम करता है, कोई बात बहुत ज़्यादा करता है, कोई बिल्कुल बात करेगा तो सिर्फ लॉजिकल करेगा, हमेशा शांत रहेगा, कोई बात करेगा तो थोड़ी हंसी मजाक अधिक करेगा, कोई बात करेगा तो सेल्स वाली बात, उसकी सेल्स वाली फीलिंग ज़्यादा आती है उसमें से। और सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, हर पर्सनालिटी की एक अलग साइकोलॉजी है।
जो भगवान ने दी है, तो वो उसकी स्पेशलिटी है। उसको हटा के हम अगर उससे काम कराने जाएंगे तो दैट कुड बी डिफरेंट फॉर अस। जो जिसको जिसमें मजा आता है दैट शुड बी देयर। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज और मॉडल्स डेवलप हुए हैं इन द पास्ट ईयर ऑल्सो, एंड अभी भी हो रहे हैं। ह्यूमन पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, और ये जो सारी थ्योरी है इन पर्सनालिटीज के हिसाब से देखें तो काफ़ी एक्यूरेट वे में उभर के आई हैं। नाउ द फोकस ऑफ दिस 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स 5 प्रकार के हैं। साइकोलॉजी में जो मेन 5 ट्रेट्स के बारे में बताया जाता है ह्यूमन पर्सनालिटी की, जो कि कई बार 5 फैक्टर मॉडल टर्म भी यूज करती है, विच हेल्प्स इन इंटरचेंजेबिलिटी ऑल्सो। नाउ हर एक जो ट्रेट है या फैक्टर है वो इन 5 से अलग होता है ना। और ऐसी बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज या एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि आदमी ह्यूमन के पर्सनालिटी में होते हैं। तो अब अपन समझे ये 5 हैं क्या। पहला पहला है ओपननेस। दूसरा है कॉन्शियसनेस। तीसरा है एक्सट्रोवर्जन। चौथा है एग्रीएबलनेस। पांचवा है न्यूरोटिज्म। ठीक है। तो अब बहुत आसान है इनको समझना। सबसे पहले हम ओपननेस को समझते हैं। ओपननेस क्या है? ये इस तरह का है कि लाइक हाउ inclined someone is to how someone is inclined to conform to society or cultural norms, how concretely or abstractly someone thinks about the things happening around, and how open or resistant someone is to change. कोई बंदा ऐसा होता है कि उसको लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद नहीं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाला। कुछ वैसे होते हैं जो ओपननेस में रहते हैं, घर से ऑफिस जाने के बाद आधा घंटा हम कॉलोनी वालों के साथ बैठेंगे या अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, या कुछ लोग अच्छे लेक्चर्स सुनना पसंद करते हैं। तो है ना। और तो हर तरह का अलग होता है। कुछ लोग चेंज के लिए रेडी होते हैं, कुछ लोग थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं एकदम से। मतलब कोई भी चीज़ में चेंज आए तो उनको अखरता है। तो और कुछ लोग बहुत क्रिएटिव थिंकर होते हैं। कुछ लोग बहुत अपनी मतलब ओपननेस को मेजर करते हैं कि यहाँ मुझे ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हर बंदे की ओपननेस की डेफिनेशन अलग है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनस जो है, इट्स अ पर्सनल डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड हाउ ही और शी टेक रिस्क। तो कॉलेज स्टूडेंट who have never miss a class and has a 4 GPA would probably prove to have a high degree of this conscientiousness and measured on a personality assessment. Okay, so next is extroversion. So extroversion जो है वो एज अ पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें सोशल पर्सन how a social person how a social person is or how warm and loving they tend to be. Extroverted इस तरह के लोग हैं who typically prefers to go for a party, lot of friends। माने वो घर में बैठने वाले नहीं हैं, वो go and get it वाले हैं। माने बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ रहो, मतलब घर में बैठने वाले नहीं हैं। वो ज़्यादा मिलनसार टाइप के लोग हैं और लाइफ को एंजॉय करने वाले फीलिंग उनमें ज़्यादा रहता है। देन एग्रीएबलनेस इट्स अगेन डिपेंड अपॉन हाउ अ पर्सन इज काइंड, डिपेंडेबल, कोऑपरेटिव। ये सारी चीज़ें रहती हैं। दैट डिपेंड्स कि वो कितना एग्रीएबलनेस है ना, उसकी एग्री करने की लेवल कितनी हाई है या एक्सेप्टेंस करने की लेवल कितनी हाई है। देन न्यूरोटिसिज्म वो एक ऐसी पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें
उसका नर्वस या एंशियस जो है पर्सन का वो कैसा है, और उसका दैट डिपेंड्स उसका डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, सेल्फ कंटेनमेंट कैसा है, जो वो उस उससे उसको पता पड़ता है कि उसका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल क्या है ना। प्री ऑक्यूपाइड ब्रेन है या ओपननेस उसमें है, परेशान बहुत ज्यादा हो जाता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है किसी कारणों से, तो ये सारी चीजें हैं जो ब्रेन लेवल से हैं। तो उसका दिमाग कितना खुला हुआ है, चीजों को ओपनली वेलकम करता है कि नहीं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। देन कम्स द एटीट्यूड। एटीट्यूड हम सभी जानते हैं एटीट्यूड क्या है, लास्ट बस। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड जो है वो इवैल्यूएशन है किसी भी बंदे का, वो कैसा है। इसकी एक रेंज है एक्सट्रीमली नेगेटिव से एक्सट्रीमली पॉजिटिव। एक बंदा होता है जो हर चीज में एक्सट्रीमली नेगेटिव माने हर चीज में बुराई ढूंढता है, और एक बंदा होता है जो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है, जो हुआ मेरा अच्छा ही हुआ, ये तो बहुत अच्छा था, मैं तो ये प्लान ही नहीं कर पा रहा था, बहुत अच्छा हुआ, मैंने वो ये ऐसा है कि मैं जो हुआ अच्छे बिल्कुल पॉजिटिव वे में होना। तो ये उस बंदे की खासियत है। तो ये पूरी रेंज है एक्चुअली, इस बीच में भी लोग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वो उस बीच में लोग हों, एक्सट्रीम लोग भी होते हैं। तो नॉर्मली जो पर्सपेक्टिव एटीट्यूड होते हैं लोगों के, वो परमिट also permit that people can also be conflicted or ambivalent towards the object by simultaneously holding positive and negative attitude both। हर बंदे में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कुछ चीजों को वो पॉजिटिव चाह के भी नहीं देख पाते और कुछ चीजों को वो नेगेटिव चाह के भी नहीं देख पाते। तो एटीट्यूड हर तरह के हैं ना। देन कम्स दी इसके जो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। इसको हम समझते हैं क्या है। ये एक मल्टी कंपोनेंट मॉडल है विच मोस्टली इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड पार्ट। ये तीन तरह के हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है ये बताता है कि बिलीव्स कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, एट्रीब्यूट कैसे हैं। देन अफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो ये बताता है कि सामने वाले की फीलिंग्स कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या बंदे की तरफ एटीट्यूड रखते हैं। क्या वो, जैसे वो बहुत लोग देखता है तो वो घबरा जाता है, या स्पाइडर्स को देख के घबराता है, या नेगेटिव अफेक्टिव रिस्पॉन्स उसमें बहुत हाई है उसका। से कुछ लोग होते छिपकली देख के घबरा जाते हैं, कुछ लोग होते स्पाइडर्स देख के घबरा जाते हैं। तो ये एक अफेक्टिव कंपोनेंट है। और कॉग्निटिव कंपोनेंट का अगर एग्जांपल दूं तो ये इस तरह का एटीट्यूड है कि दोनों उसमें मिक्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट दोनों मिक्स होते हैं किसी चीज को एनालिसिस जब वो करता है। ठीक है, तो सो द लास्ट वन विल बी द बिहेवियरल कंपोनेंट। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं और पास्ट बिहेवियर्स आपके हैं, आपकी सोच और आपका एक्सपीरियंस, वो मिला के इस कंपोनेंट को बनाते हैं, जिससे आप किसी नई चीज को जब आप देखते हो तो आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज करते हो, वेदर दैट थिंग विल बी मतलब आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। तो आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके नेचर में है, प्लस आपके एक्सपीरियंस में आपने गेन किया है, तो ये सारी चीजों को आगे रख के आप डिसीजन लेते हो किसी भी बारे में। ठीक, सो दैट वाज द टुडेस टॉपिक। Today's work is over now. If you have any doubt, you can ask me now. और कल का जो एक्सपर्ट लेक्चर है जो आपके एलुमनी का है, उसको जरूर सुने, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और सभी को आप इंक्लूड करें उसके लिए, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेम।